اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. یہاں پر ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. فعل ماضی کا ہم نے ٹیبل پڑھا. فعل ماضی بالکل اس ٹیبل سے میچ کرتا ہے جو ضمیر منفصل کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا. اور ضمیر منفصل کی ضمیریں بھی یعنی جو اس کے پروناؤنز ہے ہوا ہما ہم وہ دونوں وہ مرد وہ بھی اسی فعل کے اندر ہڈن ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو نہ لکھیں, بالکل جائز ہے آپ کا دونوں طریقے سے ورڈ کو سمجھ میں آنا. یعنی آپ ہوا فعلا لکھیں گے تب بھی آپ اس کو وہ اس ایک مرد نے کیا لکھیں گے, اور آپ ہننا فعلنا لکھیں گے تب بھی ان سب عورتوں نے ٹھیک ہے کیا. اس طریقے سے ہننا فعلنا ان سب عورتوں نے کیا, ہوا فعلا اسے ایک مرد نے کیا, انتما فعلتم تما تم دونوں مردوں نے کیا. اسی طریقے سے سارے ورڈز کو آپ نے بنانا ہے قولا کے علاوہ. تو یہ ہم فعل ماضی پڑھ رہے تھے اور آج اس کا اجرا کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کا اردو وارننگ سوری وارننگ کہہ رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ان تمام چیزوں کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹرانسلیٹ ان دا سینس کہ آپ اس کو بتائیں گے. اگر روٹ لیٹر کا میننگ نہیں پتا ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے, اور آپ نے بتانا ہے اس کے اندر کتنے پرسن کی اور کون سے پرسن کی بات ہو رہی ہے, غائب کی, حاضر کی, متکلم کی, یعنی تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن, اور اس کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹیبل کو ذہن میں رکھیں. چلیں جی جی. فعلو سوری قالو, قالو کس جگہ پر آئے گا ٹیبل میں, ہمیں یہ بتائیے پہلے. لاسٹ میں, مطلب اوپر والی جو لائن ہے قالو, جیسے ہاں فعلا یعنی فرسٹ رو میں لاسٹ کالم ہے نا, فرسٹ رو میں لاسٹ کالم. ویری گڈ. تو واو الف کی وجہ سے وہ جمع ہو گیا. اور اگر قول کا میننگ ہوتا ہے کہنا, تو اب بتائیں کیا ترجمہ ہوگا. ان سب مردوں نے کہا. ویری گڈ, ان سب مردوں نے کہا. اب یہ مرد آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ فرسٹ رو میں ہے نا, غائب مذکر کی. فرسٹ رو میں ہے. ویری گڈ. غائب ہے, غائب مطلب ان سب, اور مرد کیسے ہوگا کیونکہ فرسٹ رو میں ہے. اور سب مردوں نے کہا. ویری گڈ. سب کیوں کہا آپ نے, دو کیوں نہیں کہا, ایک کیوں نہیں کہا؟ نہیں, کیونکہ یہ لاسٹ میں پلیورل والے میں آ رہا ہے نا, مثنیٰ میں بھی نہیں ہے. ویری گڈ, یہ پلورل والے میں ہے, جمع والے میں آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگا, ان سب, سب کا مطلب ہے پلورل ہو گیا, جمع ہو گیا, ان سب مردوں نے کہا. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. ہمیں یہ بتائے اگر اس کو کہنا ہوگا آپ دو مردوں نے کہا, سوری فعلا نہیں قولا, آپ وہ دو مردوں نے کہا, ناٹ آپ دو مردوں نے, ان دو مردوں نے کہا. قالا, لام کے بعد الف آئے گا. ویری گڈ. قولا, قولا میں لام کے بعد الف آ جائے گا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, اللہم زد فزد, جزاک اللہ خیرا کثیرا. چلیے ٹھیک ہے, نیکسٹ. جی. انزلتا. انزلتا یہ سیکنڈ رو میں آئے گا, اور ہاں جی. یہ ڈویل ہے, مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے, تو اسے ہم کہیں گے انزلتا, ان دو نے اتارا, یا ان انزلتا یا دونوں نے انزلتا؟ انزلتا, ان دو نے اتارا یا ان دو نے نازل کیا. جی. تو کون, کن دونوں نے, میل ہے, فیمیل ہے, کون ہے؟ یہ دونوں میل ہے. میل ہے شیور. ابھی آپ نے کہا دوسری رو میں آئے گا, پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جی, میل ہے. نہیں سوری, یہ مؤنث ہے. مؤنث. جی, انزلتا, کیونکہ دوسری انزلتا رو میں آ رہا انزلتم ہے. بھی آئے گا. ٹھیک, ہاں ہاں, انزلتا. میل والا بنائیے ذرا, میل جی, والا, اسی کا میل بنائیے, اسی کا میل بنائیے. کیا بناؤ میم؟ دو تم اب وہ تم نے نازل کیا, اب وہ تم نے نازل کیا. میں یہ آواز نہیں آئی آپ کی. دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ آپ نے کہا کہ یہ فیمیل کے لیے ہے نا, دو فیمیلز کے لیے, تو جی جی, آپ دو میل کے لیے کیا بنائیں گے؟ ان کے لیے بھی انزلتا ہی آئے گا.
उन दोनों दोनों के लिए मर्दों ने आएगा। नाजिल किया, उन दोनों मर्दों ने अंजल नाजिल किया, अंजल तुमा, अंजल तुमा, तुम दोनों मर्दों ने नहीं, अन, अंजल अंजलना ये आएगा मैम, मेरे तो अंदाजा है कि अंजलना ही आएगा। अंजना अंदाजा क्यों अंजल लगाना है हमने? देखें, नहीं, अनजला, अनजला जो वर्ड है वो हमारा फर्स्ट वर्ड बनेगा, क्योंकि अगर इसका ता हटा दें तो फिर हमें मेन वर्ड मिल गया, अनजला मिल गया, जी उसने ठीक नाजिल है। किया। अब आप बताएं उन दोनों ने नाजिल किया में क्या करते हैं हम? उन दोनों मर्दों ने नाजिल किया, टेबल की तरफ आ जाए, टेबल, अंजलता, अंजलता ता और कैसे आएगा? ता नहीं आएगा, ता तो होना ही नहीं चाहिए। गौर करें, देखें हम टेबल बताते हैं आपको। जी जी, थोड़ी मैं शायद कंफ्यूज हो गई मैं इसमें ना। अंजलता, देखें, अंजलता, वो दोनों मर्दों ने ठीक नाजिल किया। ठीक अब ठीक। बताएं वो एडिशन अंजल किससे लिखा हुआ है? मैम, अंजल तुमा आता, अंजल तुमा आता, ठीक ठीक, मैं गलती पर थी। अंजल तुमा मर्दों के लिए आता, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं ना, फिर जो है आगे जो है ना वो भी अंजल तुमा ही आता है अगर मुसन्ना में, ठीक है। हाँ, वो मैं तो अंजल तुमा का फिर तर्जुमा कीजिए, हमें पहले ये बताइए तर्जुमा क्या होगा? अंजल तुमा का तर्जुमा होगा उन दो मर्दों ने पर नाजिल हुआ या उन दो मर्दों पर उतारा गया। पर नहीं, उन दोनों मर्दों ने नाजिल किया, ठीक है। हाँ? करने वाले वही हैं, कोई और नहीं कर रहा है, करने वाले वो खुद हैं। कि फेले अच्छा माजी जब हम पढ़ रहे हैं तो वो करने वाला खुद होता है। अंजल तुमा, तुम दोनों मर्दों ने नाजिल किया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि उन दो मर्दों ने नाजिल किया, तुम दो नहीं, उन दो मर्दों ने नाजिल किया। अच्छा अच्छा, अंजला, हाँ, अब आया आप पॉइंट पर, अल-आन, अब आपने सही बताया। ठीक ठीक है, तो क्या हुआ? अनजला, अलिफ लगाना था, अंजला, ठीक है, तुमा तो तुम में आ जाएगा ना, हाँ जी 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 हाजिर के सीगे जी हो जी जाएंगे, हमें जी गायब जी। के सीगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन द वर्ड, वो मैम दोनों। तो बिल्कुल, मैम बिल्कुल जहन से निकल गया एकदम, जो आपने टेबल दिया ना तो फौरन दिमाग में आ गया। हाँ, तो देखिए हम आपको ट्रिक बता अंजला, रहे हैं क्या करना है आपको। ट्रिक जी क्या है? ट्रिक ये है कि जब आप लोगों से कहा जाए, आप सबसे कहा जाए तुम, तो आपको जी तीन लाइन को, तीन रोज को गायब कर दी। जैसे तुम सुना तो आपकी ये जी जी जी, कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल हो गई, सही, क्योंकि तुम जी हमें सिर्फ और सिर्फ इन दो रोज में तो मिलेगा, ठीक और ठीक, कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ही हमने कहा वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो कहते ही आपको जी पता चलना चाहिए गायब की बात हो रही है, इसका मतलब नीचे के तीनों कैंसल, इसमें से जी कुछ जी, भी नहीं है। जैसे ही हम कहेंगे मैं या हम, तो आपने ऊपर के चारों सारे कैंसिल कैंसिल कर बस, देना है, हाँ बस सिर्फ ये नीचे के नीचे ऊपर के दो फोकस बताइए। करना है। तो सही ऑलवेज फोकस ऑन द वर्ड, कि वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, हाजिर है, सही गायब है, मुतकल्लिम है। हमेशा अगर सही, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम पर फोकस करेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी आप लोगों से, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वैसे वाह, हसीबत। हाँ जी, आई एम सो सॉरी, हमने गलती से सारे हैंड डाउन कर दिए, तो आप लोग हैंड रेज कर लें दोबारा से प्लीज। जी, हसीबत, हसीबत। ये मैम सेकंड रो में फर्स्ट, सेकंड कॉलम है फर्स्ट रो में। हाँ, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, वेरी गुड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। कॉलम मतलब जो उस खड़ा खड़ा एक होता है, रोज मतलब जो लेटी लेटी होती है उसको खाया जाता है, ठीक है। अब उस बताएं, एक औरत ने हिसाब किया। वेरी गुड, उस एक औरत ने हिसाब किया या गुमान किया, उस एक औरत ने हिसाब किया या गुमान का भी तर्जुमा होता है, ठीक है। हसीबा का तर्जुमा कभी गुमान भी होता है, कभी हिसाब भी होता है, कभी कैलकुलेट भी होता है और कभी अज्यूम भी होता है। तो उस एक औरत ने गुमान किया, उन दो औरतों ने गुमान किया। बताएं अब क्या करेंगे आप? असीबता,
अलिफ लगा देंगे, हसीबता, हसीबता, हसीबता। तुम सब औरतों ने गुमान किया, तुम हसिब हसिब तना, हसिब तुन्ना, हसिब तुन्ना तुन्ना। है, हाँ तुन्ना है, ठीक है, उसके ऊपर शद है, तुना नहीं है, तुन्ना है। हसिब तुन्ना, तुम सब औरतों ने गुमान किया, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसका ओरिजिनल वर्ड क्या होगा? सबसे पहला उस एक वर्ड में, हसीबा, हसीबा। सब कुछ एंड का हटा देंगे और सिर्फ मेन वर्ड को ले आएंगे, क्योंकि हा के ऊपर फतहा होना चाहिए, बा के ऊपर फतहा रूट लेटर के, और बीच का लेटर जैसा भी है वैसा कॉपी। हसीबा, वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। चलिए next। जी, जी अंजरना, मैम, अंजरना ये 6 सेल में आएगा, हुन्ना, हुन्ना की जगह हाँ अंजरना। हुन्ना की जगह पर 6th सेल का है। 6th सेल का जब पता चल जाता है तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, आप फिर कहीं का भी कर सकते हैं, ठीक है। अंजरना का तर्जुमा क्या होगा? उन सब औरतों ने डराया, उन सब औरतों ने डराया, उन सब औरतों ने आगाह किया, वार्न किया, ठीक है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा? ये किस अंजरा, वर्ड से निकला है? अंजरा। नून जारा सब से, कुछ नून हटा जारा देंगे, से रॉ अंजरा। के, हाँ रॉ के ऊपर जबर आ जाएगा, फतहा आ जाएगा, अंजरा। अंजरा का मीनिंग, उसने डराया, उसे एक मर्द हाँ ने डराया। हाँ, उस एक मर्द ने डराया। मैंने डराया, तर्जुमा कीजिए। अंजर अंजर तू, तू, तू का मतलब अरबी जबान में होता है मैं, ठीक है, अंजर तू, मैंने डराया, वेरी गुड, मैंने डराया, ठीक है। अभी एक और चीज हम आप लोगों को टेबल में से बताएंगे और करने वाली, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। तुम सब मर्दों ने डराया, अंजर तुम, अंजर तुम, तुम, अंजर तुम। इसके रूट लेटर क्या होंगे? नून जाल रो, हाँ, नून जाल रा, नजरा। जाल। इसमें अलिफ जो है एक्स्ट्रा है, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, माशाल्लाह तबारकल्लाह, ठीक है जी। नेक्स्ट, जअला, जी, जी सेकंड वर्ड है मैम, फर्स्ट रो का सेकंड वर्ड, फर्स्ट फर्स्ट रो का सेकंड वर्ड है। फर्स्ट रो का तर्जुमा सेकंड करें, वर्ड। जअला का मतलब होता है बनाना, उन उन दो मर्दों ने बनाया, उन दो मर्दों ने बनाया, उन सब जी मर्दों ने बनाया, तर्जुमा करें, आलू, हाँ वाव अलिफ लगा देंगे, जालू, अलिफ, उन सब मर्दों ने बनाया। तुम जी एक मर्द ने बनाया, आप एक मर्द ने बनाया। जालता, जालता, लाम के ऊपर सुकून लगा देंगे क्योंकि छठे वर्ड के आगे आ रहा है, छठे वर्ड के जी आगे जो भी वर्ड आएंगे उसके लास्ट लेटर पर सुकून हम होता है, और फिर ता जी तुमा तुम, ती तुमा तुम ना, उस हिसाब से करना है। तो जालता, वेरी गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह। हम सब ने बनाया, हम सबने जालना, नून ना, नून जालना, अलिफ जी हाँ फतहा, खींच कर, जालना कहेंगे तो वो अंजरना के जैसा सुनाई देता है ना, तो थोड़ा सा जी खींच कर, जालना, खींच अलिफ के जालना, साथ, जी माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। सबसे पहला वर्ड क्या होगा इसका? जाला, जाला, जाला का मीनिंग, फतहा, बनाया, उस एक मर्द ने बनाया, उस एक मर्द ने बनाया, माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। नेक्स्ट, ये सारे आपके तर्जुमे लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यू कैन टैली लेटर ऑन। आमिलू, आमिलू, जी, आमिलू, अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आमिलू, अमीलू, उन सब ने अमल किया, उन उन सब सब मर्दों ने, ने अमल, उन सब मर्दों ने उन- अमल किया। हाँ उन सब मर्दों ने अमल किया, उन सब औरतों ने अमल किया, अ, अमीलुन, अमीलुन्ना, अमीलुन, देखें हम आपको बताते हैं वहां पर क्या होता है। जो छठा वर्ड है ना, ये छठा आ गया जहां से जी चेंजेस शुरू होते हैं, तो हमने एक चेंज जो बताया था वो क्या करना है, लास्ट लेटर लाम कलिमा पर क्या आ जाए, सुकून आ जाए, सुकून आ जाए, सुकून आ वेरी गुड। तो ये अमिल बन जाएगा, अमिल बन जाएगा, है ना,
जी अमिल बन जाएगा। और सिर्फ आखिर में नून लगा दीजिए, जी ना लगा दीजिए, नून जबर ना। अब पढ़ें। अमीलुन अमीलुन अमिल, अमिल पर स्टॉप हो जाए और ना लगा दीजिए। अमील आमिलुन ना वाओ, इसको, ये तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है ना, ये तो प्लूरल मेल की निशानी है। बचा क्या हमारे पास, ये बचा ना। आमिलुन आमिलुन फोकस करें, देखें। आमिलु अच्छा हमें ये बताइए इसका पहला वर्ड क्या बनेगा, पहला वर्ड। आमला आमिला अमीला, क्या बनेगा? अमीला बनेगा, ठीक है, जी अमीला। अब बाकी सबको भूल जाएं, आपको क्या बनाना है, सिक्स्थ वर्ड बनाना है, छठा वाला, जो सब चीज में चेंजेस कर देता है। तो छठा बनाना है तो पहले क्या करेंगे, इसको आमिल अमील कर देंगे, आमिल अमील कर कर देंगे, देंगे अमील कर देंगे, प्लस आखिर में ना लगा देंगे। बन गया आपका छठा आमिल वर्ड, आमिलना जी अमिलना। ठीक है, अमिलना। तो अमिलना जो है ये आपका क्या बन गया, तर्जुमा करें। उन सब उन सब औरतों ने किया उन सब औरतों ने क्या क्या किया, अमल किया अमल किया। हाँ, तो जब वर्ड मिल जाए तो उन वर्ड सब यूज औरतों ने करना। अमल किया उन सब औरतों ने अमल किया। अब बहुत आसानी से आप आगे का बना सकते हैं। अमिल के आगे ता तुमा तुम, ती तुमा तुम, ना तू और ना लगा दीजिए, है ना। अब हम आपसे पूछते हैं, तुम सब औरतों ने अमल किया, तुम सब औरतों ने अमल किया, आमिल तुम तुम सब आमिल औरतों तुन्ना ने, सॉरी मर्दों ने। आमिल तुन्ना आमिल अमिल तुन्ना तुन्ना, अमिल तुन्ना, मैंने अमल किया, आमिल तू अमिल तू, राइट, वेरी गुड। तो अब आपने ये अमिल को लेकर चलना है, उसके आखिर में ता लगा देंगे तो आप एक मर्द, तुमा लगा देंगे आप दो मर्द, तुम लगा देंगे आप सब मर्द, फिर ती लगा देंगे आप एक औरत, तुमा लगा देंगे आप दो औरतें, तुन्ना लगा देंगे आप सब औरतें। नू ना ना अमिल तू लगा देंगे, तू यानी मैं, और मैं अमिल एक ना लगा देंगे तो हमने अमल किया। हम अच्छा हमें ये बताएं, तुम वो दोनों ने अमल किया, वो दोनों ने अमल किया, आमिल तुमा उन दोनों ने अमल किया। आमिल गौर तुमा करें मुझ पर, गौर करें, हम क्या कह रहे हैं। आप आमिल था सॉरी ता तो पिक्चर में आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम की बात ही नहीं हो रही है। उन दोनों मर्दों ने अमल किया, आमिलत उन दोनों मर्दों ने। दो मर्दों के लिए हम क्या करते हैं, आमिलु आमिला अमिला अमिला, सिर्फ अलिफ लगाते हैं, ठीक है। आमिला जी हमेशा क्या करना है आपने, उसका ओरिजिनल वर्ड बनाए और उसके हिसाब से जो भी एडिशंस है वो किया करें, ठीक है। तो अमीला पहला वर्ड था, उसमें आप अलिफ लगा देंगे तो उन दोनों मर्दों ने अमल किया। फिर हम यूं कहते हैं, उस एक औरत ने अमल किया, आमिल तू आमिल था ता तो ता का मतलब तुम एक मर्द, ता तुमा तुम, थी तुमा तुम, ना तो वहां आ जाता है। आमिल अमीलत, आमिलत ता के ऊपर, आमिलत आमिलत अमीलत, ता के ऊपर सुकून आ जाएगा, ठीक है। अमीलत ता के ऊपर सुकून आ जाएगा। फिर इसी ता के ऊपर सुकून के आगे एक अलीफ बढ़ा दे, जैसे मेल में बढ़ाया था, तो वो दो अमीलता औरतों ने अमल किया, अमीला था। वेरी गुड, अल्लाह मजीद फजीद, बारकल्लाहु फीकुम। नेक्स्ट जी, आमन्ना, जी, अनम्यूट कीजिए माइक को। आमन्ना आमन, ईमान ला जी आमन्ना ईमान ला ठीक है। और ये है हाँ, आमन बना है ईमान से, राइट। तर्जुमा करें, ईमान लाना, वो ईमान ईमान लाना, नहीं हम तो नहीं फेल नहीं पढ़ रहे हैं ना। मैं ईमान लाया ईमान लाना तो
मजदर हो गया। ईमान लाना, वो एक मर्द ईमान लाया, वो एक तो मर्द इसका ईमान लाया। तर्जुमा पक्की बात है, वो एक मर्द ईमान लाया, ये तर्जुमा होगा। गौर करें, जी। ईमान के रूट लेटर क्या क्या है? हमजा, मीम, नून। हमजा, मीम, नून। मैम अगर हमने बनाना होता तो हम कैसे बनाते? माना तो था पहले वर्ड पर, दूसरे वर्ड पर जो हमने देखा साइन, वो डिक्शनरी में भी जबर है, आमना, वो ईमान लाया। अब बताएं, ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं, वो ईमान लाया हमने ये आपको मैच पहला इसलिए वाला नहीं कर रहे कि नून के ऊपर अमन ना, ये इस पे तशदीद है, तो इसलिए मैच नहीं कर पा रहे। हाँ, मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसके अंदर दो नून है ना? जी दो नून है, जी तो जी। दूसरा नून कहाँ से आया? क्या तर्जुमा होगा उस दूसरे नून का? ये तो फिर या तो फिर ये होगा कि वो सब ईमान लाए। कौन सब? मेल, फीमेल? अभी तक जो है ना, लोगों ने तजदीद वाला नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हाँ, बिल्कुल आपने जो कहा, बिल्कुल जबरदस्त वाला आपने गेस किया है। बस वो सब ईमान लाए। अब बस आप ये बता दें, बहुत सिंपल बात हो गई, मेल या फीमेल। अगर आप टेबल पर या जहन पर गौर करें, थोड़ा सा जोर डालें, तो मेल या फीमेल आप बता देंगे तो बिल्कुल सही तर्जुमा निकल आएगा। वो सब मेल 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 है जी, वो ईमान लाए, वो ईमान लाया, वो मेल है, मेल है। मेल है, मेल है। मेल, मेल को अगर हम कह रहे थे उन सब ने किया, उन सब मर्दों ने किया, तो हम क्या लगा रहे थे? तो वो तो मेल और फीमेल दोनों हो जाएंगी मैम। फालू, हमने किया था फालू, तो वाव अलिफ आया था ना, वाव अलिफ तो नहीं है यहाँ पर, तो वो सब मर्द तो नहीं हो सकता। जी जी। तो देखिए, अब ये देखना हम आपको बताते हैं, ये क्या है? आमन्ना, ठीक है, इस यही है ना। आमन कभी भी तजदीद का लाओ क्या मीनिंग होता है? तजदीद का मैम, मीनिंग इमाम ईमान लाओ, हमको नहीं पढ़ रहा ईमान है, लाओ भी नहीं हो सकता पढ़ना ये। वही है, पढ़ना वही है, वो लाया, तुम लाए, मैं लाए, हम लाए, वही सब पढ़ना है। लेकिन लाया कौन है, बस वो बताना है आपको। कितने लोग लाए हैं और कौन है, मेल है या फीमेल है, वो बताना है आपको। ईमान तो लाए हैं, लेकिन कौन लाया? एक मर्द लाया, वो एक मर्द लाया, तुम एक मर्द लाए, वो सब औरतें लाई, आप सब मर्द लाए, कौन लाया है, बस वो अगर हम बताना। आमन्ना कहेंगे तो वो सब वो सब ईमान लाए, नहीं, हम सब ईमान लाए, हम सब ईमान लाए, हम सब में ये नून के होना चाहिए। साथ अलिफ आता है, याद रखें, इस चीज को नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, जब भी हम सब सही आता है है ना, सही जैसे रब बना, हम पढ़ते हैं रब बना, है। हमारे अगर रब, तो आमन्ना आ हम के जाते लिए तो ना आता है, अलिफ के साथ आता है, लेकिन ये अलिफ के बगैर है। तो अलिफ के बगैर अच्छा। ना कहाँ पर मिलता है हाँ, हमें पूरे ये टेबल में? फिर ये मैम, अच्छा, आमन्ना ये हुआ कि वो सब औरतें ईमान लाई, हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह मस्जिद पजिद, वो सब वो औरतें सब। ईमान लाई। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ी सी ताकि आप सब लोगों के लिए, हाँ जी, बात वाज़ेह हो जाए। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर, ये है आमन्ना। तो अगर हम गौर करें, तो पहला वर्ड तो बनता है हमारा आमना, आमना। फिर इसी से बनेगा आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमन्ना। आमन्ना का मतलब है, इसके अंदर नून के ऊपर शद है, और नून किसी भी वर्ड के ऊपर शद का क्या मतलब होता है? कि वो दो वर्ड हैं जिसमें एक के ऊपर सुकून है और एक के ऊपर जज़म है, एक के ऊपर सुकून और एक के ऊपर जज़म है। जैसे हम कहते हैं अबुन, अबुन, या जैसे हम कहते हैं उम्मुन, उम्मुन। उम्मुन में मतलब मीम के ऊपर शद है। मीम के ऊपर शद का क्या मतलब है? पहले मीम के ऊपर सुकून है और दूसरे मीम के ऊपर क्या है? दो पेश है। उम्मुन में दूसरे मीम के ऊपर दो पेश है, तो जो साइन लगी हुई होती है वो दूसरे की होती है, और पहले वाले के ऊपर सुकून होता है। तो अब जरा इसको अगर गौर करें हम, ये हमें पता चल गया शद का ये मीनिंग होता है। अगर शद का ये मीनिंग होता है, तो आमन्ना का क्या मीनिंग होगा? आमन्ना का मीनिंग होगा
یہ ایسے لکھتے نہیں ہیں لیکن یہ ہم آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں ایسے. آمن کیا ہوا؟ یہ سکون آ گیا. فیمیل پلورل کا نون آ گیا. تو فیمیل پلورل کیا کرتی ہیں؟ نون زبر نا کے ساتھ آخری لیٹر کو جزم دے دیتی ہے اور یہاں سے اینڈ تک یہی چلے گا. آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتنا، آمنتو، آمنا. ہم پڑھتے ہیں نا آمنتو باللہ و ملائکتہ، تو میں ایمان لایا یا لائی باللہ اللہ پر. ٹھیک ہے، تو آمنتو میں ایمان لائی، آمنا ہم ایمان لائے، آمنتا تم ایمان لائے، آمنتما تم دونوں ایمان لائے. تو یہ کیا تھا؟ یہ جو شد تھا اس کو کھولا ہم نے تو ہمیں پتا چلا یہ تو وہی فیمیل پلورل ہے جو کیا کر رہی تھی، سب کو پریشان کر رہی تھی. یہ وہی ہے جو رول کو چینج کرتی ہیں. تو اسی لیے بات تھوڑی سی واضح نہیں ہو رہی تھی. تو یاد رکھے جب شد ہوگا اینڈ میں نون کے ساتھ شد ہوگا تو اس کا مطلب یہ فیمیل پلورل کی بات. اگر یہ الف ہوتا آمنا، یہ الف کے ساتھ ہوتا آمنا، تو یہ کیا ہو جاتا؟ ہم سب ایمان لائے. لیکن یہ صرف آمنا ہے، نہ تک ہے، تو اس کا مطلب وہ سب عورتیں ایمان لائے. یہ بالکل اسی پیٹرن پر ہو گیا نا، فعلنا پیٹرن پر. دیکھیں فعلنا، فعلنا ہے کہ نہیں ہے؟ روٹ لیٹر وہی ہے. فا کی جگہ حمزہ آ گیا، عین کی جگہ میم آ گیا، لام کی جگہ نون آ گیا. روٹ لیٹر سیم ہے، پیٹرن بھی بالکل سیم ہے. کیا کہ دونوں پر تو حرکت ہے، پہلے دونوں پر حرکت ہے، تیسرے پر سکون ہے اور لاسٹ میں نون ایکسٹرا ایڈ ہوا ہے. تو یہ کون سا پیٹرن ہے؟ فعلنا پیٹرن ہے. آمنا، فعلنا. فعلنا وہ سب عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا. آمنا ان سب عورتوں نے ایمان لائیں، وہ سب عورتیں ایمان لائیں. ٹھیک ہے، چلو نیکسٹ والا ہم کرتے ہیں. اب یہ جو آمن ہے، آمن نون کے اوپر شد کے ساتھ کیا چلے گا؟ آمن کے ساتھ آگے آگے بڑھتے جائیں گے. شد اینڈ میں آئے گی آمنا والے میں بھی، لیکن باقی سب میں صرف آمن چلے گا. کیسے؟ آمن تا، آمن تما، پھر تما تم، اس طریقے سے آمن کے ساتھ چلے گا کیونکہ نون کے اوپر سکون لگ گیا. سکون کہاں لگتا ہے؟ چھٹے ورڈ میں. چھٹے ورڈ میں لاسٹ لیٹر سکون والا ہو جاتا ہے، اور جب چھٹا لیٹر سکون والا ہو جاتا ہے تو 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14 تک وہ آمن ہی چلے گا. آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتنا، آمنتو، آمنا، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں. حیّنا، حیا، حیا اتا، حیا اتا. جی، حیا کا مطلب ہوتا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ، مہیا کرنا. ٹھیک ہے، مہیا کرنا. چلیں بتائیں، مائک انمیوٹ کیجیے. جی. ہاں جی، حیا اتا مہیا کرنا، ٹو فیسیلیٹیٹ. تو ان دو مردوں نے مہیا کیا. ان دو مردوں نے، ہاں دو عورتوں نے، یہ سیکنڈ رو میں سیکنڈ پہ ہے. ان دو عورتوں نے مہیا کیا. ان دو عورتوں نے مہیا کیا. پہلے آپ نے مرد کیوں کہا تھا، پھر بعد میں آپ نے عورت کیوں کہا؟ عورت ہونے کا ریزن بتائیں. نہیں، وہ غلطی سے بولا کہ عورت ہونے کا ریزن تو تا ہے. تا، تا الف، تا تا. الف، وہ دو عورتیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. حیات کے وہ آگے ایک الف لگا دیا تو وہ حیاتا بن گیا کہ وہ دونوں عورتوں نے مہیا کیا. پھر جی. اگر ہم نے کہنا ان سب عورتوں نے مہیا کیا، تو حیّنا، 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 اس کے اوپر کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گا. نون زب ہو جائے گا. حیّا، نا. ٹھیک ہے، حیّا نا.
اب یہ جو حیا ہے یہ اینڈ تک ایسے ہی چلے گا. اب ہمیں بتائیں میں نے مہیا کیا, یا اتنا سیم رہے گا, بس اینڈ میں ہاں. کیا ایڈ کرنا ہے وہ بتائیے. تے پہ پیش لگ کے مطلب رفع. ویری گڈ. حیا تو, حیا تو, ہم تو. سب نے مہیا کیا. حیا نا, نون الف, حیا حیا نون نا, زبر اور نون الف. نون الف کے ساتھ. ویری گڈ ماشاء اللہ. اللہم زد فزد, بارک اللہ فیکم, اللہم زد فزد. اس کا اوریجنل ورڈ کیا ہوگا؟ حیا. جزم کے ساتھ. ہاں اس میں تو جزم ہی ہے, یہ کو ڈبل ہے نا حیا. ہاں یہ والا جو آپ نے لکھا, نہیں یہ الف آئے گا نا. حیا ہاں. حیا. ہاں. ایکچولی میں یہ جو ہے نا جزم ہوتا ہے یا حمزہ جو ہوتا ہے اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے نا, اس کو کوئی نہ کوئی سیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. کون سی سیٹ؟ یا تو الف کی یا کی یا واو کی. تو یہاں پر الف کی سیٹ لے کر وہ آ کی ساؤنڈ دینا ہے نا ہمیں, تو الف کی سیٹ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حیا آ, کیونکہ ہم نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ دونوں فا کلمہ اور لام کلمہ زبر کے ساتھ ہوں گے. جی ٹھیک ہے, سوری ناٹ اس طریقے سے نہیں ہوگا, الف کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ اس طرح سے ہوگا, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, پھر اس کے آگے دوسرا الف لگے گا تو یہ حیا آ بن جائے گا 2 مردوں کے لیے, اور حیا او 3 مردوں کے لیے یا 3 سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ یا جو ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے, سائلنٹ ہے, اس کو پڑھا نہیں جاتا, یہ صرف لکھا جاتا ہے. کس کے لیے؟ یہ حمزہ کو سیٹ دینے کے لیے. پھر الف لگا دیں گے تو 2 کے لیے ہو جائے گا, واو الف لگا دیں گے تو سب کے لیے ہو جائے گا. حیا آ, حیا آ, حیا او, اس نے مہیا کیا, ان دونوں نے مہیا کیا, ان سب نے مہیا کیا, تم سب نے مہیا کیا. ترجمہ کریں. تم سب مرد یا تم سب مردوں نے مہیا کیا. اچھا یاد رکھیں ایک اور بات, کبھی بھی عربی زبان میں جب کوئی بھی چیز کو ذکر کیا جائے گا اور اس میں جینڈر مینشن نہیں کیا جائے گا نا, تو اس میں ہمیشہ مرد کنسیڈر کرا کریں. ٹھیک ہے, جب تک عورت کے بارے میں اسپیسیفکلی ایک دم کلیئرلی اسپیسیفکلی نہ بتایا جائے تو عورت کنسیڈر نہیں ہوگی عربی زبان میں, بلکہ ہر زبان میں. ٹھیک ہے, اور جب خاص طور پر عورت کہہ دیا جائے تو عورت ہوگا. اچھا جہاں پر بھی ہم جینڈر مینشن نہیں کرے اس کا مطلب کیا ہے, میل. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا میل کیا ہے, ڈیفالٹ جینڈر ہے جب تک کہ فیمیل ہونا ثابت نہ ہو جائے. جی یہ پڑھ لیا تھا نا ہم نے. چلے جی. ٹھیک ہے, بتائیں تم سب نے مہیا کیا. حیا تم. ویری گڈ ماشاء اللہ. حیا تم سب عورتوں نے مہیا کیا. حیا تننا. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد, بارک اللہ فیکم. حیا تننا. ٹھیک ہے, ہمارے خیال سے آپ کا پورا ہی ٹیبل ہو گیا. چلے ٹھیک, ماشاء اللہ پورا حیا والا ٹیبل مکمل ہو گیا. نیکسٹ ورڈ. جی نیکسٹ ورڈ ہے قلنا. قلنا. اب یہ ایکچولی میں یہ اس میں ڈالنا نہیں چاہیے تھا ہمیں ایگزامپل, لیکن ڈل گیا تو خیر جو بھی ہے ایکسپلین کر دیں گے ہم. ہینڈ ریز کیا تھا ہم نے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, قلنا کل کیا نہ ترجمہ نہ ہوگا؟ پہ زبر ہے, یہ 6th ورڈ آئے گا سیکنڈ رو میں, ماشاء فیمیل اللہ. سیکنڈ رو. ویری گڈ. کیسے پہچانا آپ نے یہ 6 ورڈ ہے؟ نہ پہ فتح آیا ہے اور اس سے پہلے اس سکون ہے. میں, ہاں اس کے پہلے سکون ہے. ہاں جو سکون آتا ہے ان سب عورتوں کے لیے, ویری گڈ. اس لیے. تو ہاں اب ترجمہ کیا کریں گے؟ کل کا مطلب ہوتا ہے کہنا. ترجمہ کریں. کہنا, قلنا مطلب ان سب عورتوں نے کہا. ان سب عورتوں نے کہا. تو جب ہمیں یہ مل گیا ہے, اچھا اب آپ سب لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ جب ہم نے پڑھا تھا قولا تو اس کا بیچ کا الف کہاں چلا گیا؟ تو وہ الف یہاں پر جب چھٹے لیٹر پر آتا ہے تو ڈراپ ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے پوری طرح سے. ٹھیک ہے, قولا قولا قولو قولت قولتا قلنا, وہ غائب ہو جاتا ہے.
اب یہ کیوں غائب ہو گیا یہ بھی ریزن جان لیں کہ عربی زبان میں 3 ورڈ ایسے ہیں، وہ ہیں الف، واو اور یا. یہ 3 الفاظ کو ہم کہتے ہیں ویک لیٹرز. ویک یعنی کمزور، حرف علت کہتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی پوری طرح سے جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کرتے ہیں. الف کی جگہ واو، واو کی جگہ یا کی جگہ الف، اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، یا پھر پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو ویک واول والے ورڈز ہوتے ہیں جن کے بیچ میں الف آتا ہے، واو آتا ہے یا آتا ہے، تو اس کے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ جب وہ چھٹے ورڈ پر آتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہو گیا، قلنا. اگر یہ قلنا ہے تو اگر ہم کہیں کہ تم دونوں نے کہا، کیسے ترجمہ ہوگا؟ یہ کل تو ایسے ہی رہے گا لاسٹ باقی سارے لائنس میں، تو کل تما. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. کل تما، تو کل کیونکہ ہمیں ایک مرتبہ چھٹا ورڈ پتا چل گیا تو ساری پریشانی ختم، کیونکہ چھٹے ورڈ میں ہی ہم نے تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بننا ہے، اس کے بعد تو سب کچھ سیم چلے گا. تو کل سب جگہ ہو گیا، اور پھر آگے آپ نے تا، تما، تم، تی، تما، تنا جو بھی ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کریں گے. تو تما لگا دیا تو تم دونوں نے. اگر ہم کہیں کل تننا، کیا ترجمہ ہوگا؟ کل تننا، آپ سب عورتوں نے کہا. کل تننا، آپ سب عورتوں نے کہا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. قالو، قرآن میں بہت مرتبہ استعمال ہوتا ہے قالو، کیا ترجمہ ہوگا؟ قالو، ان سب نے کہا، ان سب ہاں، مردوں نے کہا. ان سب مردوں نے کہا. تو یہ بہت مرتبہ قرآن میں آتا ہے. قولا بھی آتا ہے اس نے کہا، اور قالو بھی آتا ہے ان سب نے کہا. تو قرآن میں بہت مرتبہ، بہت فریکوینٹلی یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قولا اور قالو، اس نے کہا، ان سب نے کہا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد. چلیں نیکسٹ ورڈ، بشرتما. نیکسٹ ورڈ، نیکسٹ کون رہ گیا ہے؟ ہاں جی، بشرتما. بشرتما، جی، وہ بشرہ کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینا، خوشخبری دینا. بشارت دینا. ان دو غور کرے مردوں آپ نے کیا کہہ رہے ہیں. ان دو مردوں نے بشارت دی. ان دو مردوں نے بشارت دی. مردوں نے بشارت دی، چلیں ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں دے دی. تم دو مردوں نے بشارت دی، سوری، تم دو مردوں نے بشارت دی. نہیں، ہم تو کہہ رہے تم دو عورتوں نے بشارت دی. آپ مرد کیوں کہہ رہے اچھا، ہیں؟ ریزن تم بتائیں ہمیں. دو عورتوں نے بشارت دی. بشرتا. نہیں، آپ نے چینج کیوں کیا؟ آپ صحیح کہہ رہے تھے. جی جی آپ میم. چینج کیوں کر، آپ اس کو کچھ اور ریزن دے. ہم کہہ رہے کہ بشر تم دو عورتوں نے بشارت دی، آپ کہہ رہے تم دو مردوں نے بشارت دی. دونوں ہی صحیح ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ مردوں میں بھی آئے گا میم اور عورتوں میں بھی یہی آئے گا. ہاں بالکل، چینج نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنا سٹینڈ لے کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. تو تما جو ہے میل اور فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے. تو دونوں تما کے لیے آئے گا. اب جب ترجمہ کریں گے تو یہاں پر کوئی کانٹیکٹ تو ہے نہیں، تو آپ دونوں ہی ترجمے یہاں پر کریں گے. ٹھیک ہے، کبھی بھی جب بھی آپ کو کانٹیکٹ نہ ملے تو آپ کو جتنے پاسبل ترجمے ہیں وہ سب کر دینے ہیں. تم دو مردوں نے بشارت دی اور تم دو عورتوں نے بشارت دی. مے بی دس اور دیٹ، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم دونوں میں کنفرم نہیں ہے. اگر ہم کہیں فاطمہ اور عائشہ، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم دو عورتوں نے بشارت دی. لیکن اگر ہم کہیں کہ احمد اور محمد، تو پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تم دو مردوں دو مردوں نے بشارت دی. ہاں ٹھیک ہے. اور جب نہیں پتا ہے تو کیا کریں گے؟ دونوں ترجمے کریں گے، تم دو مرد اور تم دو عورت. تم سب مردوں نے بشارت دی، ترجمہ کریں. تم سب مردوں نے بشارت دی. آواز نہیں آ رہی آپ کی ہمیں؟ اچھا میم آ رہی ہے آواز؟ نہیں آ رہی؟ جی اب آ گئی، اب آ گئی. ہلو. جی جی آ گئی ہے. جی جی.
सब जी मर्दों जी ने ठीक है मैम जी। क्या हो गया भाई? जुमा करे। आ रही है आवाज तो आ रही होगी मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी। मर्द और औरत दोनों के लिए बशर्तुमा ही होगा मैम, बस हाँ ये तो है जी। अधिक और क्या पूछेंगे मैम वो बताएं। हाँ जी जी आ जी रही है हमारी आवाज। कहें हमें, तुम सब जी मर्दों मैम ने बशारत दी। जी जी। सब मर्दों ने बशारत दी, सब औरतों ने बशारत, दो दो औरतों ने बशारत, सब और मर्दों ने बशारत दी। हाँ अच्छा फिर तर्जुमा हम कहेंगे करेंगे हम। बशर तुम हाँ बशर तुम बशर तुम। इसका ओरिजिनल बशर वर्ड क्या होगा सबसे पहला? बशरा बशर बशरा। बशरा। ठीक है बशरा बशरा। तुम बशरा बशरा बशर का तर्जुमा करें पहले वर्ड का। एक मर्द ने बशारत दी, हाँ उस एक बशारत मर्द दी। ने बशारत दी। उस एक मर्द ने बशारत दी। उन दो मर्दों ने बशारत दी। क्या करेंगे हम? क्या ऐड बशर करेंगे? बशरा अलिफ ऐड करेंगे। वेरी गुड। बशरा अलिफ ऐड करेंगे। उन सब जी मर्दों ने बशारत दी। बशरू उन सब औरतों ने बशारत दी। उन सब औरतें बशरना बशरना शीन दो मर्तबा है ना। जी जी बशरना वेरी गुड। बशर रॉ के ऊपर सुकून आ जाएगा और एक नून एक्स्ट्रा जी ऐड हो जाएगा। उस एक औरत ने बशारत दी। बशरत बशरत। बशरत वेरी गुड माशाल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद। ठीक है नेक्स्ट जी। अनजलतुम। अनजलतुम जी हाँ अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। जी अनजलतुम। आप सब मर्दों ने नाजिल किया। आपको इससे पहले भी नाजिल वाला ही आया था क्या? जी जी। अच्छा चलें ठीक है। आप सब मर्दों ने नाजिल किया। ठीक है हमें बताएं कि अगर हमने कहना है कि मैंने नाजिल किया तो कैसे कहेंगे? अनजलत मैंने नाजिल किया। अनजलतु सॉरी। अनजल तू का मतलब होता है अरबी जबान में मैं। ठीक है मैं तू यानी मैं। अनजल तू हमने नाजिल किया। अनजलना कितनी मर्तबा आता है ना ये कुरान में अनजलना। हमने अनजल नाजिल किया। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है अच्छा अनजला को छोड़ दें आप। कि सेम वर्ड हो गया ना। अब बताएं क्या तर्जुमा होगा? अनअम अनअमा। अनअमा अनम नाम का मतलब होता है इनाम करना। अब तर्जुमा करें। मैंने इनाम किया। मैंने कहाँ लिखा हुआ है इसमें तू? तू तो है ही नहीं एंड में। उसने इनाम किया, सॉरी उसने इनाम किया। किसने? उस एक मर्द ने औरत उस एक ने? सॉरी उस एक मर्द ने इनाम किया। हाँ उस एक मर्द ने इनाम किया। इनाम आप एक मर्द ने इनाम किया। बताएं। अनअमता अनअमता आप एक ने इनाम किया। मैंने इनाम किया। अनअमतु वेरी गुड। अनअमता अलैहिम हम पढ़ते हैं ना। आपने इनाम किया तो अनअमता आपने इनाम किया। मैंने इनाम किया अनअमतु। उस एक औरत ने इनाम किया। अनअमत अनअमत ताके ऊपर सुकून आ जाएगा। अनअमत आप एक औरत ने इनाम किया। अनअम अनअम अनअमा आप एक औरत। अनअमती अनअमती अनअमती। अनअमती आप एक औरत ने इनाम किया। वो दो औरतों ने इनाम किया। उन दो औरतों ने इनाम किया। अनअमतुमा वो दो औरतों ने इनाम किया। उन दो औरतों ने अनअम इनाम किया। अनअमता अनअमता
अनअमाता अनअमाता, अमाता यहाँ पर किसी भी चीज को पॉज नहीं करेंगे, ठीक है हम। अनअमाता, अनअमाता, अनअमाता उन सब औरतों ने इनाम किया। अनअमन गौर करें, लास्ट लेटर को जो पहला है ना उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, देखें ये जो वर्ड्स होते हैं ना उसको कुछ भी अनअम नहीं छेड़ना है, बस एंड ना में जो भी चेंजेस हो रहे हैं। हाँ बताएं। अनअमना अनअमना, वेरी गुड। आपने क्या करना है, इसको सुकून देना है लास्ट लेटर को, और इसके आगे एक नून लगा देना है। मीम पे अनअमना, सुकून जी वेरी गुड, माशाल्लाह। अनअमना, उन सब औरतों ने इनाम किया। और फिर यही अनअम जो होगा एंड तक चलता रहेगा। अनअम अनअम अनअम, उसने इनाम किया। अनअमता, तूने इनाम किया। अनअमती, तुम एक औरत ने इनाम किया। अनअम तुम सब औरतों ने इनाम, तुम सब मर्दों ने इनाम किया। अनअम तुमा, अनअम अनम तुमा का क्या तर्जुमा होगा? अनम तुमा आप दोनों ने इनाम किया, आप दो किसने? मर्दों ने आप दो मर्द ने। मर्दों ने और औरतों ने? मर्द और मर्द के लिए और यानी औरत के लिए तुमा ही आएगा मैम। वेरी गुड, दोनों के लिए तुम आएगा, माशाल्लाह। हम सब ने इनाम किया। जी मैम। हम सब ने इनाम किया, हम सब ने। अनअमना अनअमना वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। चल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक हो गए हमारे वर्ड्स। जी, आगे देख लेते हैं कोई और रह गया है, वरना हम एक जो पॉइंट बताना था वो जहन से निकल जाएगा। चले अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हो गया है। बस यहाँ पर एक चीज गौर करें, अरबी जबान में साइन कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हम आप लोगों को गौर करवाना चाहते हैं। आप जरा इस फर्स्ट रो पर गौर करें, सिर्फ सॉरी फर्स्ट कॉलम पर, नॉट रो पर, फर्स्ट कॉलम पर गौर करें। इस पर गौर करें। इसके अंदर हर वर्ड जो है ऑलमोस्ट एक जैसा दिख रहा है। तब्दीली कहाँ है? सिर्फ एक जगह, यहाँ पर, ठीक है। और मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फाअलत है, उस एक औरत ने किया। फाअलता, आप एक मर्द ने किया। फाअलती, आप एक औरत ने किया। फाअलतू, मैंने किया। जैसे हम कुरान करीम में पढ़ते हैं अनअमता, तूने इनाम किया। अलैहिम, उन पर, तूने इनाम किया उन पर, जो हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं। गलती से भी अगर हम अनअमतू कह दें या ताके ऊपर सुकून ले आए या ती कह दें, तो नाउजुबिल्लाह हम सोचे कितना गलत तर्जुमा कर देते होंगे। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आयत करीमा पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो लोग कहते हैं कुन्तु मत पढ़ो, दूसरे के लिए पढ़वाना है, कुंता कुन्तुम पढ़ो। लेकिन वो कुछ सेंस ही नहीं बनता उसका। यानी आप बिला सोचे समझे कहीं पर भी कोई जबर जेर पेश नहीं लगा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, क्योंकि हमने ये चीज कहाँ पर भी फोकस की थी, जब हमने वो पढ़ा था कतला दाऊदू जालूता, जब हम रफा नस्ब जर पढ़ रहे थे कि अगर आप उसके ऊपर फतहा लगा देते हैं तो वही अगर सिंगुलर वर्ड है और फतहा के साथ आ जाता है तो वो डिटेल बन जाता है, और अगर वो दम्मा के साथ आता है तो वो क्या बन जाता है, वो डूअर बनता है, काम करने वाला बनता है। और वो ही जेर के साथ आता है तो वो जर वाला बन जाता है, यानी कि मजरूर वाला बनता है, ठीक है, जो काकी के वगैरह का तर्जुमा देता है, मिल्कियत बताता है, पोजेशन बताता है। तो इसका मतलब अरबी जबान में एक एक वर्ड के साथ एक एक हर्फ, और एक एक हर्फ के साथ एक एक जबर जेर पेश भी इम्पोर्टेंट है। तो कोई दम्मा फतहा कसरा को आप स्किप नहीं कर सकते, या उसकी जगह पर कोई और जबर जेर पेश नहीं लगा सकते। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो इंडिया वाले जिसको शिफा कहते हैं, पाकिस्तान वाले उसको शफा कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे, मतलब थोड़ा सा वो स्टाइल में चला जाता है, तो वो उसका है। लेकिन अरबी जबान में ऐसा हरगिज भी जायज नहीं है, क्योंकि शिफा का मतलब है क्योर, यानी कि शिफा यानी क्योर होता है, शिफा मिल जाना होता है ना। लेकिन अरबी में शफा का मतलब होता है किनारा, गड़ा, गड़ा या किनारा होता है। तो ये जबर जेर पेश करने से पूरा तर्जुमा चेंज हो जाता है। जबर का जेर, जेर का जबर, जबर का पेश, ये हम तर्जुमा में चेंज
चेंजेस आपको फील होंगे, और ये वही जान सकता है जिसने अरबी ग्रामर पढ़ा हो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना, तजवीद को उसको बेहतर बनाकर, उसको एनहांस करके पढ़ा करें। कुरान पढ़ते वक्त ना घटाएं ना बढ़ाएं, कोई चीज उसमें घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। इसका यही मतलब है कि घटने बढ़ने से क्या होते हैं, तर्जुमे तब्दील हो जाया करते हैं, ठीक है। ये ता को अगर हम घटा कर अच कर दें, फअलत अन अमत, उस एक औरत ने इनाम किया, और हम कह रहे हैं अन अमत अलैहिम, नाउजुबिल्लाह, तो तर्जुमा ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अन अमती अलैहिम, आप एक औरत ने इनाम किया उन पर, अन अमतु अलैहिम, मैंने इनाम किया उन पर, तो तर्जुमा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल वाइल ट्रांसलेटिंग, वाइल ट्रांसलेटिंग। और ग्रामर जो होता है, इसी चीज की हमें क्या अता करता है, तमीज अता करता है, इसी चीज के हमें डिस्टिंग्विश अता करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमें ग्रामर का इल्म अता कर रहा है, तो अल्लाह का इस पर भी शुक्र बनता है कि अल्लाह तूने हमें इस काबिल समझा कि हम तेरी जबान को समझने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हैं ना, इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। हम लोगों ने आज फेल पढ़ा। फेल का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो कि एक्शन और टाइम को बताता है, जो काम और जमाने को एक साथ बताए, उसे वर्ब कहेंगे, फेल कहेंगे। जिसमें जमाना नहीं वो फेल नहीं, जिसमें जमाना नहीं वो मजदर है, यानी कि इस वर्बल नाउन है, इसमें मजदर है। यानी अरबी जबान में जाना, आना, खाना, पीना, टू गो, टू ईट, ये इस्म की कैटेगरी में आता है, फेल की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। तो जब तक के जमाना ना पता चल जाए आपको, हाल है, माजी है, मुस्तकबिल, तब तक आप उसको फेल नहीं कह सकते। तो कोई ना कोई जमाना उसमें मौजूद होना चाहिए। फिर हमने देखा अरबी जबान में जमाने के लिहाज से सिर्फ दो फेल हैं, फेल माजी और मुजारे। मुजारे के अंदर दो दो चीजें आ जाती हैं, हाल, मुस्तकबिल, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। और फिर फेल माजी का हमने टेबल पढ़ा। टेबल बहुत सिंपल है, आप एक मरतबा उसको लर्न कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। फाला फाला अलिफ ऐड कर दिया, फालू वाव अलिफ ऐड कर दिया, फिर फाल में फाला में ता सुकून ऐड कर दिया, फाला ता में ता और अलिफ ऐड कर दिया, फालना में आपको याद रखना है। फालना क्या है, छठा वर्ड, जहां पर फीमेल एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, फीमेल प्लूरल, जमा मुअन्नस। जमा मुअन्नस में क्या होगा, जो भी आपका वर्ड है, पहला वर्ड जो फर्स्ट सेल में आता है, फर्स्ट बॉक्स में आता है, फ़अला, उसके लास्ट लाम कलिमा पर सुकून आ जाएगा और एक नून ऐड होगा उसके आखिर में। तो सुकून और नून ऐड होता है, उसका मतलब फीमेल प्लूरल है। और जैसे ही सुकून ऐड होता है, वो सुकून वाला वर्ड तक एंड तक कैरी ऑन होगा। फ़अल फ़अल फ़अल, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू और ना ऐड कर देंगे बस फ़अल के आखिर में, ठीक है। इस तरीके से हम तर्जुमा करेंगे। और इसमें क्या बात और करने वाली है कि जो भी फेले माजी है, उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो आखिर में होते हैं, कोई भी चेंजेस दरमियान में नहीं होते। यानी दरमियान इन द सेंस, बेसिकली शुरू में कोई चेंजेस नहीं होते, आखिर में सारे चेंजेस होते हैं। अगर आप आखिर के चेंजेस को समझने लगेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको पता होगा कि आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं और कौन से सीगे की बात कर रहे हैं, गायब की, हाजिर की या मुतकल्लिम, थर्ड है, सेकंड है या फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का होमवर्क है कि जो हमने वर्ब्स आपको दिए हैं उसमें से एक जबर, आइन कलिमा पर जबर वाला ले लें, एक आइन कलिमा पर पेश वाला ले लें और आइन कलिमा पर कसरा वाला ले लें। दम्मा फतहा कसरा वाले 3 टेबल बनाएं और अपना होमवर्क करके इन चार्जेस को आप लोग सेंड करें, ठीक है। औला मत लीजिएगा, औला मत लीजिएगा। हाँ, अगर आप ले भी सकते हैं क्योंकि कुलना अभी प्रैक्टिस में आ गया है, छठा वर्ड कुल बन गया, कुलना, तो उससे आप एंड तक बना भी सकते हैं, कुलना, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुमना, कुलतू, कुलना। क्योंकि जहां पर वीक लेटर होते हैं वहां पर थोड़े से रूल चेंज होते हैं, ठीक है। तो खैर अभी हम लोगों ने वीक लेटर वाले नहीं पढ़ना है, मेन जो फोकस हमने रखना है कॉन्सोनेंट्स पर रखना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेटर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेटर ज्यादा होते हैं बनिस्बत वीक लेटर्स के। तो हमें हमेशा मेजर चीजों को पढ़ना चाहिए, एक्सेप्शन हम पढ़े ना पढ़े वो समझ आ जाती है बाद में, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ने बैठ जाएंगे तो मेजर रूल को हम भूल जाएंगे। तो मेजर वाला पढ़ें जिसमें वीक लेटर है, अलिफ वाव या बीच में,
تو وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ اب آپ لوگ اس چیز کی پریکٹس کریں. بائی دا نیکسٹ لیسن آپ لوگوں کو فعلا ٹیبل فعل ماضی پورا لرن ہونا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.